السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں راڈی شیٹروں کی گئی کونسلنگ۔ SI کے راما راؤ نے اپنے حدود کے تمام راڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے کی ان کی کونسلنگ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں چارمینار بس اسٹینڈ کو دوبارہ کھولنے کے لیے متعلقہ وزیر سے سختی سے کیا مطالبہ۔ شہر میں جائیدادوں کی فروخت میں 65% کی گراوٹ ریکارڈ، اور سال گزشتہ ماہ فروری کے دوران ہونے والے رجسٹریشن کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2022 فروری میں جائیدادوں کے رجسٹریشن میں 64% گراوٹ۔ حکومت ہند سے سنگارینی میں کوئلے کی کانوں کی نجکاری نہ کرنے پر زور دینے کے لیے حکمراں اور اپوزیشن ارکان دونوں کے مطالبے کے درمیان وزیر توانائی جگدیش ریڈی نے کہا، ریاستی حکومت سنگارینی کالریز کی نجکاری کی اجازت نہیں دے گی۔ کانگریس کے سینئر قائدین اور MLA ملو بھٹی وکرمارکا اور ڈی سریدھر بابو نے ریاستی حکومت سے کیا مطالبہ کہ دھرانی پورٹل میں بے ضابطگیوں کی وجہ سے دسیوں اور ہزاروں لوگوں کو درپیش مسائل کو حل کیا جائے۔ وزیر تعلیم P سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، تمام سرکاری اسکولوں میں اگلے تعلیمی سال سے 1 سے 8ویں جماعت کے لیے انگلش میڈیم متعارف کرایا جائے گا۔ حیدرآباد کے شہریوں کو ملٹری کر رہی ہے پریشان، کنٹونمنٹ ایریا میں کرنٹ اور پانی بند کر دینے تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ کا انتباہ۔ نوٹری جائیدادوں کا رجسٹریشن حکومت کے زیر غور، دھرانی پورٹل سے اراضی معاملات میں شفافیت، پرشانت ریڈی۔ عمرہ کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری، حرمین شریفین میں داخلے کے لیے حد عمر اور ویکسین کی شرط ہو گئی ختم۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں راڈی شیٹروں کی کونسلنگ کی گئی۔ SI کے راما راؤ نے اپنے حدود کے تمام راڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان کی کونسلنگ کی اور مستقبل میں کسی بھی جرائم میں ملوث نہ ہونے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ اگر مستقبل میں کسی بھی جرائم میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں چارمینار بس اسٹینڈ کو دوبارہ کھولنے کے لیے متعلقہ وزیر سے سختی سے مطالبہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مجلسی چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کا کیا کہنا ہے۔ مین روڈ کے اوپر ٹرن ہونے کے لیے کافی دشواری ہے، تو میری حکومت سے گزارش ہے، خصوص کر ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے، جو چارمینار بس اسٹینڈ کو ایکوائر کر کے وہاں پر پارکنگ لاٹ بنانے کا جو پروگرام رکھا گیا ہے، بہت اچھا پروگرام ہے۔ جیسا کہ کوٹھی کے اوپر نیچے سے بسز پاس ہو رہے ہیں اور اوپر آفیسز بنائے گئے، اس طریقے سے وہاں پر بس اسٹینڈ بنائیے تاکہ نیچے سے بسز پاس ہو جائیں اور اوپر پارکنگ لاٹ بنایا جائے۔ چونکہ وہاں پر میرا گھر بھی وہیں پر ہے، میری KT راما راؤ سے میری ریکویسٹ ہے، ہمارے KT راما صاحب سنیے میری بات کو آپ، میری ریکویسٹ ہے کہ
चार मीनार बस डिपो को वहां से जो शहर में जायदादों की फरोख्त में 65% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है और साल गुज़िश्ता महीने फरवरी के दौरान होने वाले रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आई है कि 2022 फरवरी में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में 64% गिरावट आई है। शहर के साथ मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी की भी यही सूरत हाल है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2021 में जायदादों की फरोख्त जिस तरह से रिकॉर्ड की गई उसमें 64% की गिरावट इस साल हुई है और रिहाइश अपार्टमेंट की फरोख्त में गिरावट रियल एस्टेट शोबे बिलखुसूस बिल्डर्स के लिए तशवीशनाक है। रियासत के 4 अजला में साल गुज़िश्ता के एतबार से मजमूई तौर पर 25% गिरावट रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में जायदादों की खरीद व फरोख्त में गिरावट को देखते हुए कहा जा रहा कि माहाना रजिस्ट्रेशन की तादाद 5146 तक महदूद रह गई है और माह फरवरी 2022 के दौरान 2722 करोड़ मालियत की जायदादों की खरीद व फरोख्त हुई। महीना जनवरी के दौरान शहर हैदराबाद में 5568 रिहायशी जायदादों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे जिनके जुमला मालियत 2695 करोड़ रही। नाइट फ्रैंक के तज्जिया निगारों का कहना है कि जायदादों की कीमतों में इजाफे के अलावा रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफे के सबब जायदादों की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई और मुतवस्सित तबके की जानिब से रिहायशी जायदादों की खरीदी में दिलचस्पी नहीं रही, जबकि साल गुज़िश्ता जनवरी और फरवरी में जायदादों की खरीद व फरोख्त में इजाफा हुआ था। नाइट फ्रैंक का कहना है कि शहर की रियल एस्टेट मार्केट जायदादों की कीमतों में इजाफे के एतबार से मुल्क भर में बेहतरीन मार्केट साबित हो रही। हुकूमत हिंद से सिंगरेनी में कोयले की कानों की निजकारी न करने पर जोर देने के लिए हुक्मरान और अपोजिशन अरकान दोनों के मुतालबे के दरमियान वजीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत सिंगरेनी कॉलरीज की निजकारी की इजाजत नहीं देगी। वो वक्फे सवालात के दौरान दोनों इतराफ के अरकान के जरिए मरकज की तरफ से कोयले कानों की निजकारी से मुतल्लिक सवालात का जवाब दे रहे थे। डी श्रीधर बाबू कांग्रेस लीडर ने सवाल उठाया। कोयला पट्टी से ताल्लुक रखने वाले अराकीन ने वजीर पर जोर दिया कि वो कोयले कानों की नीलामी न करने के लिए एक करारदाद मंजूर करके उसे मरकज को भेजे। कांग्रेस के अरकान चाहते थे कि मरकज के साथ मसला उठाने के लिए एक ऑल पार्टी वफ्द नई दिल्ली का दौरा करे। कांग्रेस के सीनियर कायदीन और एमएलए मल्लू भट्टी विक्रमार्का और डी श्रीधर बाबू ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि धरानी पोर्टल में बेज़ाब्तगियों की वजह से दसियों और हजारों लोगों को दरपेश मसाइल को हल किया जाए। कांग्रेस के अराकीन असम्बली ने रियासती असम्बली में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए लोगों की परेशानियों को उजागर किया। श्रीधर बाबू ने निशानदेही की कि किस तरह आजाद पसंदों और साबिक फौजियों के लिए मुख्तस जमीनों को ममनुआ जमीनों की फहरिस्त में डाला गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने धरानी को रियासत में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम बुराइयों के लिए वन स्टॉप हल के तौर पर पेश किया। ताहम म्यूटेशन की फराहमी के फकदान की वजह से हजारों दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा थी। उन्होंने मजीद कहा कि इसी तरह सर्वे नंबरों के गलत अंदराज, सर्वे नंबरों में जमीन की हद, जमीन के मालिकान के नाम वगैरह लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने वाले चंद नाम थे। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि तमाम सरकारी स्कूलों में अगले तालीमी साल से 1ली से 8वीं जमात के लिए इंग्लिश मीडियम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर मौसूफ असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती हुकूमत के मन्ना ओवरू मनाबादी प्रोग्राम पर अराकीन की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दे रहे थे। वज़ीर ने कहा कि क्लास 1 से 8 तक 2022-23 तालीमी साल के दौरान अंग्रेजी मीडियम शुरू किया जाएगा, जबकि 2023-24 से क्लास 9 और 2024-25 तालीमी सालों से क्लास 10 के लिए इसी तरह शुरू किया जाएगा। हुकूमत असातिज़ा की तरबियत 14 मार्च से शुरू करेगी, ये बताते हुए कि मुफ्त यूनिफॉर्म और दोपहर के खाने की सहूलत की वजह से इस साल 3 लाख से ज्यादा तलबा ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से कंटोनमेंट एरिया में सड़क बंद कर देने और दूसरे तरीकों से शहरियों को परेशान करने के वाकयात पर शदीद बरहमी जाहिर की है। वजीर मौसूफ ने इंतबा दिया कि शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के जरिए अगर मिलिट्री अथॉरिटी अपने फैसलों से दस्तबरदार नहीं होती तो ऐसी सूरत में कंटोनमेंट एरिया में बरखी और पानी की सरबराही बंद कर दी जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रियासती असम्बली में मजलिस के रुकन कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में बारिश के पानी के दाखिले को रोकने से मुत्तलिक सवाल का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने कहा कि टोली चौकी के मिलिट्री एरिया में मिलिट्री अथॉरिटी ने चेक डैम तामीर कर लिया है, जिससे बारिश के पानी की निकासी में मुश्किल हो रही। नतीजे में बारिश का पानी नदीम कॉलोनी में दाखिल हो रहा। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मिलिट्री अथॉरिटी को इस मसले को पेश किया गया, लेकिन वो मानते तैयार नहीं, इसलिए जरूरत पड़ने पर कंटोनमेंट एरिया में करंट और पानी कट कर दिया जाएगा।
वज़ीर इमारत व शोरा प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि अराजी तनाज़ात के मौसर हल के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने धरानी पोर्टल मुतारिफ किया है। असेंबली में महकमे माल के मुतालबात ज़र पर मुबाहिस के जवाब में प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि 1,52,00,000 रुपए एकड़ अराजी को धरानी पोर्टल में दर्ज किया गया। उन्होंने कहा है कि पोर्टल के जरिए किसानों के दरना तनाज़ात की यकसुई हुई। साबिक़ में अराजियत रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम को 2 साल तक दफातर को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब धरानी पोर्टल से सिर्फ 15 मिनट में खरीद व फरोख्त मुकम्मल की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन के जरिए हुकूमत को 11,000 करोड़ की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर 32 से खदमात दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक 18 लाख मामलाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने काबीना में तब्दीली का इशारा दिया है। असेंबली में पेश किए जाने वाले बजट की मंजूरी के लिए मुनक्किदा काबीनी इजलास में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कई वुज़रा के लिए ये आखिरी काबीनी इजलास होगा। बताया जाता है कि वजीर आला ने काबीनी इजलास के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि वो बाज़ वुज़रा की खिदमत पार्टी के लिए हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बाज़ वुज़रा को पार्टी के ज़िले सुदूर के ओहदों पर फाइज किया जाएगा। पार्टी की दोबारा कामयाबी पर वो काबीना में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि काबीना में तमाम तबकात और इलाकों को यकसां तौर पर नुमाइंदगी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद काबीना में शमूलियत के लिए अरकान असेंबली की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सऊदी हुकाम ने हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म कर दी है। खबररसा इदारों के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने ज़ायरीन के दाखिले के लिए हिफाजती तदाबीर में मजीद नरमी के ऐलान किए हैं और वजारत हज व उमरा का कहना है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए ज़ायरीन को अब तवक्कलना ऐप के जरिए अपने सेहतमंद होने की संद दिखाना जरूरी नहीं होगा। रमजान मुबारक की आमद से कबल हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में उम्र की हद भी खत्म कर दी है, जिसके बाद मस्जिद हराम में हर उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाजत मिल गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए तवक्कलना ऐप पर अपना स्टेटस इम्यून दिखाना होता, जिसके बाद ही दाखिले की इजाजत मिलती थी। हाल ही में सऊदी हुकाम ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए इजाजत नामे की शर्त खत्म की थी और अब उसके बाद साजी फासला और गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए कोरोना के मनफी टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटरों की गई काउंसलिंग। एसआई के रामाराव ने अपने हुदूद के तमाम रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए की उनकी काउंसलिंग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में चारमीनार बस स्टैंड को दोबारा खोलने के लिए मुतल्लिका वजीर से सख्ती से किया मुतालबा। शहर में जायदादों की फरोख्त में 65% की गिरावट रिकॉर्ड और साल गुज़िश्ता माह फरवरी के दौरान होने वाले रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आई है कि 2022 फरवरी में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में 64% गिरावट। हुकूमत हिंद से संगारेनी में कोयले की कानों की निजकारी न करने पर जोर देने के लिए हुक्मरान और अपोजिशन अरकान दोनों के मुतालबे के दरमियान वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने कहा, रियासती हुकूमत संगारेनी कॉलरीज की निजकारी की इजाजत नहीं देगी। कांग्रेस के सीनियर कायदीन और एमएलए मल्लू भट्टी विक्रमार्का और डी श्रीधर बाबू ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा कि धरानी पोर्टल में बेज़ाब्तगियों की वजह से दसियों और हजारों लोगों को दरपेश मसाइल को हल किया जाए। वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, तमाम सरकारी स्कूलों में अगले तालीमी साल से पहली से 8वीं जमात के लिए इंग्लिश मीडियम मुतारिफ कराया जाएगा। हैदराबाद के शहरियों को मिलिट्री कर रही है परेशान, कंटोनमेंट एरिया में करंट और पानी बंद कर देने तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का इंतबाह।
नोटरी जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुकूमत के ज़ेर गौर, धरानी पोर्टल से अराजी मामलात में शफाफियत, प्रशांत रेड्डी। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए हद उम्र और वैक्सीन की शर्त हो गई खत्म। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।